All right. Good afternoon, everyone. So we are going to start. So today we'll be starting with data analysis and visualization. All right. So today we are going to discuss about data visualization and analysis. So before starting this part, you all are familiar with NumPy and Pandas or not? Is it covered yet? NumPy is covered. So in previous session, what you did? तो अभी लास्ट सेशन में क्या हुआ कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ नथिंग ओके प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ ना all right so everyone now silence please we are going to start so I'll be talking about data analysis and visualization but before that we need to start with few packages and libraries like NumPy, Pandas, Matplotlib and Seaborn, and then we'll be talking about a library Plotly. So these are the most common and popular packages when we talk about data analysis and visualization. So the thing is, whenever we talk about data analysis and visualization, we need to understand a term data, and in order to understand data, we need to use some libraries like NumPy and Pandas. All right. And also we'll be implementing everything on Google Colab now. So we don't need any software or anything. So let's directly go to Google Colab. 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 So we are going to use Google Colab. Colab. Collaboratory. Collaboration. Okay, so now what we are going to do is we are going to start working with the Google Colab. And when we talk about Google Colab, why exactly we are using it? Because it is alternative of Jupyter Notebook. And what is a Jupyter Notebook? It is simply a platform where you can easily implement the machine learning, data analysis or anything. But why actually we need Jupyter Notebook or these kind of IDEs? Because we know that Python is a interpreted language. Python is a interpreted language. And interpreted means the code is executed line by line. You don't have to write like complete code, then compile it and then execute it. You just write 5 lines, 6 lines, 10 lines, execute and keep on doing this. All right. So in order to implement that easily, Jupyter Notebook is available. But now Colab is one platform that provides you the alternative of Jupyter Notebook. And why it is popular? Because it is providing you 12 GB of RAM, and I think around 100 GB of memory space. It also provides you, it provides you the GPU machine. Most of the systems do not have the GPU in today's time. So if you don't have GPU, doesn't matter, you can easily connect on Google Colab, and you can also change the runtime into GPU. I'll tell you how. All right. So now we are going to use the alternative of Jupyter Notebook, and we can like easily share this notebook because it's on cloud. I can share it on GitHub or anywhere.
plus it can connect with Git, Kaggle, or any other data source platform if it is popular. So this flexibility is provided by you from the Google Colab. You can easily connect Google Colab with any of the platforms like Kaggle or something. All the packages are already installed. All right, in Google Colab, all the packages are already installed. So we don't even have to install any packages. Might be some of the package we can install if it is not there. Okay, so this is why we are using Google Colab. Plus easy to share. Okay, I can share it with anyone. I can provide you the link. I can share my notebook with anyone. You can do the changes and I can see what changes you are doing. So this is why we are using Google Colab. Okay. So let's jump to the Google Colab. And first thing we are going to, if you want to just go through this Google Colab, on the right side, you will see there is a RAM and disk space. Click on this. You will see that by default, it is providing you 12 GB of RAM, 12.68. हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? तो फिर कौन सी वीडियो? मैंने तो मिनिमाइज किया हुआ है. ये उनको करना पड़ेगा शायद जिनके सिस्टम से लॉगिन है. Okay, so basically we have 12.68 GB of RAM available and 2 to 5 GB of memory available by default. So we don't need any GPU installed in your machine. कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मिलता है पहले से. सारे पैकेजेस मिलेंगे, मेमोरी है, स्पेस है, सब कुछ है. इफ यू वांट तो आप परचेज करके और एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि डीप लर्निंग में जो प्रोसेसिंग हम लोगों को चाहिए होती है वो 12 GB की रैम से काम नहीं चलता. 12 GB रैम इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग के लिए 32 GB ऑफ रैम भी रिक्वायर्ड होती है. मतलब मेरे को खरीदना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, all right, so first of all we need to import a package known as numpy. पहले थोड़ा numpy पैकेज के बारे में देखना है. आपने सबसे पहले कोलैब सर्च किया गूगल पर जाकर, सिंपल. आपने कोलैब लिखा ना यहाँ, देखो आप कोलैब पर आ गए. ये लिंक है ना गूगल कोलैब का. तो ओपन कोलैब कर लो. न्यू नोटबुक भी कर सकते हो, करना तो न्यू नोटबुक ही एट द एंड. साइन इन करना एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग इस पर साइन इन कर चुके हो. ठीक है, साइन इन करना पड़ता है. ठीक है, अभी वैसे प्रैक्टिकल साथ साथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बस बेसिक आपने देखना है. लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट, लाइक जब हम एनालिसिस और विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे. सो द रिक्वायर्ड पैकेजेस आर लाइक numpy, pandas and matplotlib. So these are the three common packages that we need for data analysis and visualization. ये तीन पैकेजेस की इनिशियली हम लोगों को जरूरत है. ऑलराइट, तो सबसे पहले numpy पैकेज के साथ स्टार्ट करना. देखो numpy अगर हम सीख लेते हैं, आफ्टर दिस वी कैन इजीली वर्क विद TensorFlow एंड PyTorch पैकेजेस. डीप लर्निंग लगाने के लिए यू नीड टू हैव दीज पैकेजेस. या तो TensorFlow आना चाहिए या PyTorch आना चाहिए. उन दोनों का बेस numpy है. अगर numpy समझ नहीं आता तो you will be having difficulties in TensorFlow and PyTorch packages. And these two are the most popular package. कभी भी deep learning लगाना है, इन दोनों में से एक पैकेज सीखना ही पड़ेगा. ठीक है, without any of the package you cannot do anything in deep learning, in Python specifically.
All right. Okay, so after this, why we need numpy to create arrays? हम लोग को क्या बनाना है? एरे बनाना है. अब एरे क्यों बनाना है? बिकॉज द डेटा विल बी ऑफ सिमिलर टाइप. आप कभी अगर डेटा निकालना शुरू करेंगे, लेट्स से देयर इज अ इमेज, इमेज के अंदर जितने भी आरजीबी कलर पिक्सल वैल्यूज होंगे दे विल बी इंटीजर और इट विल बी फ्लोट. तो कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप होगा और एक ही डेटा टाइप हो सकता है. इन पाइथन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट, कि आप एक लिस्ट बनाते हो और लिस्ट में जाकर आप मल्टीपल टाइप का डेटा डाल सकते हो. लाइक आपने ऐसा कर दिया, इट इज अलाउड इन पाइथन बिकॉज इट इज अ लिस्ट. बट नाउ इफ यू ट्राई टू बिल्ड वन एरे लाइक दिस, कि आपने बोला मुझे एरे बनाकर दिखाओ ऐसा, तो इट इज नॉट अलाउड. ये क्या करेगा? क्या किया इसने? एक बार ध्यान से देखो जरा. इसने सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है. आप देखोगे सबके पास कोट्स आ गए हैं, 1 2 3 5, एवरीथिंग इज इन कोट्स. सो बिकॉज एरे कैन ओनली कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. ये एरे की एक बेसिक डेफिनेशन हम हमेशा से पढ़ते हुए आते हैं. और अगर किसी के लिए एरे टर्म पहली बार सुना है किसी ने, तो इट इज नथिंग जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, अब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप इसके साथ लगाना जरूरी हो जाता है. इन केस इफ एनीवन इज लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कोई पहली बार सुन रहा है इसके बारे में, व्हाट इज एरे? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. So if I have 1 2 3 4 5 something like this, that is a valid array. Now if you try to create any array like this, कि अगर आप इसमें multiple data types रखना शुरू करते हैं, तो it gives precedence, एक priority होती है. based on the priority it converts everything into a particular data type. जैसे हमने 6.7 लिखा तो सब कुछ फ्लोट में कन्वर्ट हो गया. देखो सबके बाद डॉट आ गई है. पहले अगर आप 6 लिखते हो तो नहीं आएगी, एवरीथिंग इज इन इंटीजर बाय डिफॉल्ट. लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, एक डेसिमल नंबर डाला, बाकी सब भी डेसिमल बन गए. डेटा टाइप क्या बन गया उसका? फ्लोट बन जाता है. ऑलराइट, बट व्हाट इफ आई पुट समथिंग लाइक दिस, कि इसमें फ्लोट भी है और टेक्स्ट भी है. अब प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा हो जाती है? स्ट्रिंग की प्रेसिडेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हेलो को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, लेकिन बाकी सबको तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. So that's why the string precedence is highest. Now suppose this time I am trying to write here true, and then I have written 4.5. So what do you think the output will be now? नहीं, string तो है ही नहीं ना इसमें. तो true will become 1, false होता तो 0 हो जाता है, true है तो 1 हो जाएगा. और क्योंकि यहाँ 4.5 है तो वो 1 point हो जाएगा बेसिकली. समझ आता है सब लोगों को? So this is how array actually work. This is what array is. I hope it's clear. Now after creation of the array build करने के बाद क्या करना है हम लोगों ने? array होता है dimensions के अंदर. This is a one dimensional array. Let's say आपने एक x वेरिएबल के अंदर एक डेटा रखा हुआ है, that is 1D array. So we can check dimension and all. So we can have 2D, 3D, 4D, 5D, any dimension of array we can have. So how do we build array of different dimensions? It's like a matrix. Mathematics में matrix सबने पढ़ा हुआ है. Matrix and determinants पढ़े हैं. Matrix is a 2D array. Matrix क्या है? 2D array है. So if I put this thing in a variable, you will see कि x has become a 2D array. क्या बन जाता है? एक 2D array. So 2D array is nothing, just a matrix in mathematics. Okay. I hope it's clear. You can ask anything if you have. All right. तो 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, ऐसे करके आप कितने भी डायमेंशन का एरे बिल्ड कर सकते हो. So let's get back to 1 dimensional array, and in fact you can create an array like this. आप एक फंक्शन यूज करें arange के नाम से, और इसमें पास कर देते हैं कि एक रेंज के अंदर एरे क्रिएट करना है 1 से लेके let's say 21. तो it will generate one array from 1 to 20. 1 से 20 का एक एरे जनरेट कर देगा ये. Okay, simple enough. So there are different ways to create the array. आप random कोई array generate करना चाहते हो, you can write np dot random dot
अब इसके अलग अलग तरीके हैं. आपने बोला रैंडम डॉट रैंडम, इट विल जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1. आपको 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर मिलेगा, हर बार अलग नंबर ये जनरेट करेगा, बट दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. तो मैं कमेंट्स में लिख भी देता हूं फॉर योर रेफरेंस, जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1. अब आपने बोला एक नहीं 5 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो 5 लिख देते हैं यहां पर, दैट आई वांट टू जनरेट 5 रैंडम नंबर्स. आपने बोला 5 नहीं 5/5 का मैट्रिक्स जनरेट करना है, तो 5/5 पास करके आ जाओ आप यहाँ पे, तो इट विल जनरेट अ 5/5. लेकिन आप डायरेक्टली पास करोगे 5,5 तो एरर मिलेगा. यू हैव टू पुट दिस इन अनदर ब्रैकेट लाइक दिस. इट विल गो लाइक द शेप, द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स 5/5 एज वन आर्ग्यूमेंट. आई होप समझ आ रहा है, सिंपल है बिल्कुल. दैट हाउ वी आर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स. रैंडम डॉट रैंडम एक जनरेट कर देता है, एक नंबर पास किया तो 5 वो आ गए, फिर 5/5 किया तो उतने की मैट्रिक्स आ गई. सिंपल. क्या सर? चलेगा, बिल्कुल चलेगा. ए क्या है? ए में कुछ तो होना चाहिए ना. ए में डालो कुछ आप वैल्यू लाइक दिस. बी को कुछ बताओ, बी क्या है? हाँ तो चलेगा, आप ऐसे करके चलाओगे चलेगा. आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होगे, कुछ भी लिख सकते हो. आपने ये एग्जीक्यूट नहीं किया होगा, यहाँ पर एक बार क्लिक करके आपने एग्जीक्यूट किया है. चलेगा, बिल्कुल चलेगा. अभी देखो, अभी चेक करते, एक मिनट बस. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. कोई बात नहीं, तो भी चलेगा. Now after this, let's say we want to generate random number of integers, not like from 0 to 1. So we have random dot rand int, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यू हैव टू पास वन लो टू हाई. लो इंक्लूसिव होता है, हाई एक्सक्लूसिव होता है. सो 1 to 100 पास किया तो इट विल जनरेट वन रैंडम नंबर. एक रैंडम नंबर मिल जाएगा आपको इस रेंज के अंदर. बट अगेन आई वांट लाइक 15 रैंडम नंबर्स, तो 15 रैंडम नंबर मिल जाएंगे. अब आपने बोला 15 रैंडम नंबर की जगह पर यू कैन आस्क अ शेप, सो यू कैन मेंशन अ डायमेंशन हियर. तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि 1 से लेकर 100 के बीच में आई वांट टू जनरेट अ मैट्रिक्स ऑफ 4/6. सो आई हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 4/6 विद अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 100. सिंपल इनफ. आई होप समझ आ रहा है सबको कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं यहाँ पर. तो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट रैंडम नंबर्स इन एरे. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट मेथड्स. अब आपके पास एक एक्स वेरिएबल आ जाता है, तो यू कैन चेक व्हाट इज द शेप ऑफ माय डेटा. So that is 4/6. 4 rows, 6 columns. 4 is the number of rows, 6 is the number of columns. All right. After this, A range. उसमें थर्ड आर्गुमेंट इंटरवल ही होता है. Okay, so I think we can proceed now.
Okay, so now after this, we are simply taking one example to understand how to perform indexing and slicing in your data. So I am using randint, generating some random data from 10 to 100. And let's say I want to generate 11 elements. Okay. तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जिसका नाम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? आई वांट टू एक्सेस एलिमेंट्स वन बाय वन, कि मेरे एक्स वेरिएबल में सारा डेटा है, 11 नंबर पड़े हुए हैं। आई वांट टू एक्सेस एनी ऑफ देम, तो आई कैन डायरेक्टली राइट कि मुझे थर्ड इंडेक्स का डेटा दे दो, क्योंकि एरे के अंदर इंडेक्सेस कहां से शुरू होती है? 0। सो इफ यू राइट एनीथिंग लाइक दिस, यू विल स्टार्ट टू गेट दी डेटा, आपको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। So if I have written x0, so I'll get the 0th index data. If I write x6, I'll get the 6th index data. Simple. Now we can even write x square bracket -1. So it will return the data from the right side. -1 मतलब वो right side से data देना शुरू कर देगा आपको यहाँ से. Okay. So let me show you the simple thing to understand. Suppose there is one array we have. Something like this. Okay, suppose this is the array that we have. ये आपके x वेरिएबल के अंदर है, तो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इन इंडेक्सेस पर ये एलिमेंट्स अवेलेबल है. These are the available elements on particular indexes. So now if I talk about the negative indexes, so ये -1 पर है, this is on -2, -3, -4, -5, -6 and -7. सिंपल, समझ आता है? दिस इज नॉट अलाउड इन एनी अदर प्रोग्रामिंग, सिर्फ पाइथन में है ये भी कि आप नेगेटिव इंडेक्सेस कर सकते हो. तो इफ यू विल राइट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 या फिर इफ आई राइट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट -5, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि बदले में क्या मिलने वाला है. तो इफ आई राइट x0 मतलब आई विल गेट दिस नंबर. अगर मैं लिखता हूं x-5 तो आई विल गेट दिस नंबर. ओके, आई होप मेक सेंस. ये इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग. तो दीज आर दी indexes. Okay. Sorry, to get the data from right side. How? If I have to get the last element, what you will do? First you will find the length, then do -1. Instead of it, it is directly providing you -1. So that is a shortcut. Okay. So everything is a shortcut here. It is giving you right side from the from the traditional indexing. We know the length of the data. We just go to the last one. In case of negative indexing, so basically, see, in this we don't have static arrays first of all. So we don't know the length initially. You have to find out length using some function. Okay. So first thing, even if I know the length. Okay, so you will always use x square bracket, whatever the length is. If you have it in some variable, then do -1, then you will get the data. Now if I ask you further operations like how you are going to reverse your array, how you are going to fetch the last 3 elements, so in those cases slicing, reverse, it will help. Okay, all right, I hope it's clear till here. If you have anything you can ask. Plus it will be beneficial in one more task जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी याद आया मेरे को. Let's say you have one data frame. आपके पास data frames होंगे आगे चल के, तो you have like 5, 6, 7, 8 columns. आपके पास एक कॉलम है x1, x2, x3, x4 और एक कॉलम है y. You have 5 columns. अब मशीन लर्निंग को x वेरिएबल अलग चाहिए, y वेरिएबल अलग चाहिए होगा.
दिस इज व्हाट वी नीड, कि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर x1 x2 x3 x4 आ जाए और उसके अंदर y आ जाए। तो मैं कैसे निकालने वाला हूं? तो आई कैन इजीली परफॉर्म स्लाइसिंग लाइक दिस, कि मुझे 0 से लेकर -1 तक का डेटा दे दो, तो इट विल गिव यू दीज 4 कॉलम्स ओनली। और इसको मैं बोल देता हूं मेरे को -1 दे दो, तो मेरे को लास्ट कॉलम डायरेक्टली मिल जाता है। तो मेरे लिए शॉर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ बेनिफिट हो गया। बीइंग अ डेवलपर अगर मैं सोचूं तो मेरे लिए दोनों ओके हैं, बट बीइंग अ फ्रेशर बिगिनर में सोचूं तो मेरे लिए ज्यादा इजी ये है फिर। ठीक है, अगर आप सी में निकालने जाओ ये चीजें, सी में तो आपको लेंथ भी बहुत मुश्किल से, साइज ऑफ निकालो, लेंथ निकालो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ जी, तो वहां पर आपको मैनुअली पहले आप एरे स्टैटिकली असाइन करते हो, यहाँ पे डायनामिक है तो डायनामिक है तो लेंथ निकालनी पड़ेगी अलग से आपको हमेशा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं अभी। तो ये मैंने थोड़ा आगे निकल गया, मैं वापस आते हैं। -1 लिखेंगे तो x4 तक आएगा। वो स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट अभी शुरू कर रहे हैं, उसमें ये वाली बात समझ आएगी। तो बेसिकली स्लाइसिंग इज व्हाट, ये तो इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है, कि जिस इंडेक्स का डेटा मांगा उस इंडेक्स का डेटा मिल गया। सेकंड थिंग इज स्लाइसिंग। सपोज यू हैव रिटर्न कि मेरे को 0 से, मेरे को इतना डेटा चाहिए, 0 to 3 चाहिए इतना, तो आपको 0 to 4 लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एक्सक्लूसिव। ये हमेशा क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है, और ये हमेशा इंक्लूसिव होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ये चीज इंक्लूसिव है तो 0 इंडेक्स तो मिलेगी, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। तो इट विल ऑलवेज वर्क विद n-1। तो जो भी आप लिखोगे उसके -1 तक डेटा मिलता है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो इसको चलाकर देखते हैं। सो लेट्स से आई हैव रिटर्न x, वेरिएबल हमारा ये था, तो आई कैन राइट x0:4। ओके, तो 4 एलिमेंट मिले हैं मेरे को, फिफ्थ इंडेक्स नहीं मिली है, फोर्थ इंडेक्स नहीं मिली है। इफ यू विल सी आई एम गेटिंग 0 1 2 3 ओनली, बिकॉज द लास्ट वन इज -1। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ आफ्टर दिस यू कैन राइट एनीथिंग हियर, लाइक आप ऐसा भी लिख सकते थे x4:9। ओके, तो जो भी आप इंडेक्सेस लिखना चाहते हो यू कैन पास। ऑलराइट, नाउ इफ यू राइट लेट्स से 5:20, अब मेरे पास 20 एलिमेंट्स तो नहीं है अवेलेबल, वी डोंट हैव इंडेक्सेस टिल 20। तो जहां तक अवेलेबल है वहां तक डेटा मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा, तो एरर नहीं मिलेगा, ये अच्छी बात है। आई कैन राइट कि 0 से आगे तक जितना भी है सब दे दो। आई कैन राइट कि स्टार्ट 0 से करो लेकिन चाहिए 5 तक, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। आप कुछ मत लिखो, सारा डेटा मिल जाएगा। ओके, सो इट कुड बी यूज्ड इन एनी स्टाइल। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर मैं बोलूं मेरे को लास्ट से स्लाइसिंग करनी है, सपोज इफ आई आस्क टू राइट x 0:4 की जगह 4:0 लिख देते हैं, तो रिवर्स में आना चाहिए, तो यानी कि 4:0 आना चाहिए। लेट्स सी, तो हमने लिखा x4:0, लेकिन बदले में ना कुछ नहीं मिलेगा इस बार। अब ऐसा क्यों हुआ कि बदले में कुछ नहीं मिला मेरे को? ऑलवेज वो लेफ्ट टू राइट होता है, यू आर आस्किंग राइट टू लेफ्ट, तो इट गिव्स यू वन एक्स्ट्रा पैरामीटर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू +1 होती है। तो आपको इसको क्या कर देना है? -1। लेकिन जब ये -1 करोगे आप, तो आपको 0th इंडेक्स नहीं मिलेगी, +1 मिलेगा, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट गए थे तो -1 तक मिलता है, जब राइट टू लेफ्ट आओगे तो अपोजिट होगा। देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 0 to 4 चाहिए, तो 0 to 3 मिलता है ना। तो अगर आप 4:0 -1 लिखोगे तो आपको कहां तक मिलेगा? 4 to 1। 0 हटा दो। अगर आपको 0 भी चाहिए होगा तो डोंट इंक्लूड 0, तो जहां तक डेटा है वहां तक डेटा मिलेगा आपको।
-1 इंडिकेट्स कि रिवर्स में डेटा चाहिए आपको, ठीक है। नाउ यू कैन राइट कि मुझे -1 से -5 का डेटा चाहिए, लेकिन अगेन आप रिवर्स में डेटा मांग रहे हो तो यू हैव टू यूज -1। आई होप क्लियर है। अब रिवर्स चाहिए पूरे एरे का तो आई कैन यूज डबल कॉलन -1। डबल कॉलन देखो, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताना, एंड पॉइंट नहीं बताना, बस रिवर्स के लिए हमने क्या डाल दिया, -1। इससे रिवर्स हो जाएगा, सिंपल। तो ये बहुत काम आने वाली है आगे चल के हम लोगों के लिए चीजें, कि स्लाइसिंग कैसे करना है डेटा को। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म इंडेक्सिंग। कोई भी इंडेक्स लिख सकते हैं जाकर, और उसके बाद उसकी स्लाइसिंग इस तरीके से की जाती है। लेकिन ये था वन डायमेंशनल डेटा, और आगे चल के डेटा होगा 2D 3D, तब स्लाइसिंग कैसे होगी, इंडेक्सिंग कैसे होगी, वो ज्यादा जरूरी है समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम हमारे पास 4 डायमेंशन तक डेटा होगा, 5 तो नहीं होगा। 4 डायमेंशन होता है हमारे पास इमेजेस के केसेस में। तो पहली डायमेंशन होती है हाउ मेनी इमेजेस यू हैव, सेकंड डायमेंशन हाइट, फिर विड्थ, और फिर होता है नंबर ऑफ कलर चैनल, कि वो 3 है तो RGB, तो 4 डायमेंशन तक डेटा जाता है। सो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल, तो पहले 2 डायमेंशन लेते हैं। सपोज वी हैव रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, और डायमेंशन है हमारे पास 6/4। तो इसका मतलब 6 रो 4 कॉलम है, ओके। वी हैव 6 rows and 5 columns. So if I write x0, इस बार क्या मिलने वाला है जीरो पर मुझे, तो जब 2 डायमेंशनल डेटा होगा तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं मिलेगा, यू विल गेट 0th रो, क्योंकि 2D डेटा आ गया ना, तो रो कॉलम वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यू विल गेट 0th रो, ओके। तो 0th रो इज दिस, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि दिस इज 0 1 2 3 4 and 5, this is 0 1 2 and 3, ऑल राइट। बिल्कुल 2D मैट्रिक्स की तरह लेकर चलना है, ठीक है। यहां तक समझ आता है सबको, कोई डाउट है? अब कॉलम भी निकालेंगे, अभी कैसे निकालना है। तो इफ आई राइट x 0:2, तो क्या मिलना चाहिए, देखो स्लाइसिंग भी वैसे ही होगी, तो 0th रो मिलेगी और फर्स्ट रो मिलेगी अगर 2D डेटा है तो, ओके। ये सिर्फ रोज के लिए, कॉलम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है इसमें, दिस इज ओनली फॉर रोज। 0 0 1 2 कुछ भी आप लिखोगे, इट विल वर्क विद रोज ओनली। आपको कॉलम के लिए भी कुछ करना है तो यू हैव टू यूज, लेट्स से 0 कॉलम में जाना, 0th रो में जाना और 0th कॉलम में जाना, तो मेरे को 69 जो फर्स्ट वैल्यू थी वो मिल जाती है। 2D एरे को ऐसे एक्सेस करते हैं। सेकंड रो, तो दिस इज 0th रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो। तो मैंने अगर 0:2 लिखा तो 0th रो मिलेगी और फर्स्ट रो मिलेगी, क्योंकि 2 - 1 चलता है ना, ऑल राइट। तो अब हम जाकर ऐसा देखते हैं कि हमने 0 0 लिखा। नाउ लेट्स से आई वांट टू रिट्रीव अ पर्टिकुलर कॉलम, पूरा कॉलम चाहिए ना हमें एक। तो हम क्या करते हैं कि अब अगर कॉलम चाहिए तो कितनी रोज है, सारी रोज चाहिए। तो रोज के लिए हमने लगाकर छोड़ देना है कॉलन, इट मींस ऑल रोज, लगाना है कॉमा, और फिर लिख दिया 0। नाउ यू विल गेट द 0th कॉलम, ये 0th कॉलम है, ठीक है। दिस इज दी 0th कॉलम, और इसके लिए हमने क्या किया, कॉलन का मतलब है यहां पर ऑल रोज, और 0 का मतलब हो गया 0th कॉलम। आजकल बहुत सारी प्रोग्रामिंग अलग अलग, किसी जैसे आर प्रोग्रामिंग है उसमें भी नहीं चलती, वो भी 1 इंडेक्स से चलता है, ठीक है। ऑल राइट, समझ आ रहा है सबको, इजी है अभी तक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सारी रोज चाहिए और 0 से लेकर 3 कॉलम चाहिए, तो 0 कॉलम 1 कॉलम और 2 कॉलम मिल जाएगा हमें। आपने बोला सारी रोज नहीं चाहिए, सेकंड से लेकर 4th रो तक चाहिए और कॉलम 0 से 2 चाहिए। तो ऐसे करके कोई भी स्लाइसिंग वगैरह कुछ भी करके पर्टिकुलर डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। 2 and 3 और 0 and 1, ओके।
तो सेकेंड रो और थर्ड रो आ जाएगी, 0th कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। अब सोचो अगर 3 डायमेंशनल डेटा होगा तो यहाँ पर एक और कॉमा लग जाएगा और फिर थर्ड डायमेंशन में चले जाएंगे, फिर फोर्थ डायमेंशन होता तो ऐसे करके यू कैन यूज कॉमा कॉमा जिस भी डायमेंशन में हमें जाना है। ऑल राइट, तो ये था हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यूजिंग नंपाई। इसके बाद कुछ छोटे छोटे मेथड्स हैं वो देख लेते हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाएंगे। जैसे कुछ स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स होंगे, ये सब चीजें काम आती हैं। लेट्स से आपने एक्स की शेप निकाली पहले, इट्स नॉट अ मेथड, इट इज एट्रीब्यूट। मेथड वो होगा जिसके आगे आप ये ब्रैकेट लगा देते हो, नाउ इट्स अ मेथड। ठीक है, बट शेप इज नॉट अ मेथड। आप कॉल करोगे एरर दे देगा, बोलेगा कि एट्रीब्यूट है, ये कोई इसका टपल रिटर्न करता है, क्योंकि ये मुझे इसलिए बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो इसको कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो यू कैन चेक एनडेम। एनडेम आपको नंबर ऑफ डायमेंशंस बताएगा कितनी है आपके एरे की, दैट इज 2। चलो जी, अब आ जाते हैं कि इफ आई हैव टू रीशेप माई डेटा, मैं इसको पहले तो फ्लैटन कर सकता हूं। सो व्हाट फ्लैटन विल डू, कन्वर्ट डेटा इनटू 1 डायमेंशन। आपके डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, 1 डायमेंशन। चाहे डेटा 2D 3D 4D किसी भी डायमेंशन में है, तो योर डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 डायमेंशनल। ऑल राइट, इसको लिखकर आ जाते हैं एक्स डॉट फ्लैटन। ओके, तो जैसे ही आपने फ्लैटन किया यू विल हैव 1 डायमेंशनल एरे नाउ। तो पहले कुछ मेथड्स 1D डेटा पर लगाते हैं, फिर 2D डेटा पर लगाएंगे। तो अगर मुझे सम करना है एरे का, तो आई कैन डायरेक्टली डू एनीथिंग, np डॉट सम, np डॉट मीन, np डॉट std। std क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। np डॉट वेरिएंस। समझ आ रहा है, सिंपल, सारे मेथड्स अवेलेबल है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे सब मिल जाएंगे हम लोगों को यहाँ पर, कि आपको डेटा का सम, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कुछ भी निकालना है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। ओके, एनी क्वेश्चन, क्वेरी टिल हियर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आएगा, ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, सिंपल। नहीं, लॉस क्यों होगा, मतलब सारे एलिमेंट्स तो है ना हमारे पास। अब वो 1 डायमेंशन में आएगा तो टोटल एलिमेंट्स दे देगा बस आपको। ठीक, आगे चले। सेम मेथड्स आप कभी अगर डीप लर्निंग में जाओगे तो वहां पर टेंसर फ्लो के पास भी है और पाईटॉर्च के पास भी सेम मेथड्स है, तो आपका ना एफर्ट अपने आप घट जाएगा अगर आप नंपाई अच्छे से सीख लेते हो। इट्स लाइक कि बच्चे को अगर सी सिखा देते हैं तो हमें पता है वो सी प्लस प्लस जावा इजिली सीख सकता है, सेम थिंग। आप नंपाई अच्छे से करो, टेंसर फ्लो पाईटॉर्च अपने आप हो जाएगा। अगर आप ये नंपाई लाइब्रेरी अच्छे से कर लेते हैं तो आगे जो फ्रेमवर्क्स हैं टेंसर फ्लो या पाईटॉर्च वो अच्छे से समझ आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऑलमोस्ट सेम मेथड्स हैं। बस उनके अंदर जो एक्स्ट्रा मेथड्स है वो डीप लर्निंग के लिए है, इसके पास नहीं है। नाउ नल वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर देखो 2 तरीके हैं। सपोज आपके डेटा के अंदर आपने एरे बनाना है, तो यहाँ पर नैन नॉट अ नंबर लिख कर आते हैं, तो नल नाम का कोई कीवर्ड नहीं है मेरे पास बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इफ यू ट्राई टू राइट नल और समथिंग, तो ऐसा कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग कीवर्ड नहीं है। तो नल किसी प्रोग्रामिंग में चलता है, जैसे जावा में नल चल जाता है, या फिर सी प्लस प्लस में चल, उसमें सॉरी आर प्रोग्रामिंग में चल जाता है। यहाँ पर आप अगर चाहते हो कि कोई नैन जैसा कुछ मुझे मिल सकता है मैक्सिमम, अगर मुझे नल चाहिए तो उसके लिए भी है नैन। ठीक है, तो आप नैन चला सकते हो।
दैट इज नॉट अ नंबर। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई डेटा मिलता है उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नैन। ओके, वो हम पेंडास पढ़ते वक्त देखना शुरू करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, ये था हमारा वन डायमेंशनल डेटा पर आपने कुछ कुछ चीजें करके देखी। अब इसी डेटा को 2D में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव np डॉट रीशेप। तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है रीशेप, कि डेटा की डायमेंशन बदलना चाहते हो, रीशेपिंग करना चाहते हो, तो वी हैव रीशेप। अब रीशेप में आप पहला आर्ग्यूमेंट बताओगे मेरा एरे, दूसरा आर्ग्यूमेंट उसकी शेप। अब 24 एलिमेंट्स है, तो 24 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल शेप क्या हो सकती है, 4/6, 6/4, 2/12, 12/2, जो भी 12 के फैक्टर्स है वो सब में कुछ भी पास कर सकता हूं। तो आई कैन यूज 4/6, इसका मतलब 4 रो 6 कॉलम मिल जाएंगे मेरे को। 1/24, 24/1, कुछ भी पास कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, मान लो आपको नहीं पता कि हाउ मेनी रो या फिर कॉलम हमें चाहिए, कोई एक चीज नहीं पता, तो यू कैन राइट -1। लेट्स से मुझे पता है कि मुझे 4 कॉलम चाहिए, ठीक है, ये बात मुझे क्लियर है कि आई नीड 4 कॉलम, बट आई डोंट नो हाउ मेनी रोज विल बी देयर, तो -1 लिखकर छोड़ देते हैं हम, इट विल ऑटो कैलकुलेट, जो कि ऑब्वियस है 6 ही आएगा। ठीक, तो आप किसी को भी -1 कर सकते हो, किसी एक को, किसी भी एक को -1 कर सकते हैं। दूसरा नंबर आपने पास करना है तो ऑटोमेटिकली रीशेप हो जाएगा। ओके, नहीं नहीं, -1 ही लिखना है। जो भी चीज नहीं पता उसके लिए -1 लिख दो, चाहे वो रो या कॉलम। अब जैसे रो के लिए हमने -1 ही लिखा है, पहला आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ रोज है, तो -1 इज फॉर दी रोज, 4 कॉलम चाहिए। देखो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि उतने में आप उसके अलावा कुछ और भी मिस्टेक करोगे तो भी नहीं चलेगा। जैसे आप इसको 4 की जगह 5 कर दो तो भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो मल्टीपल नहीं है, तो रीशेपिंग नहीं कर पाएगा। देखो, एरे का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स अवेलेबल है वो उतने ही एलिमेंट्स पर रीशेपिंग कर सकता है, फैक्टर्स जो भी उसके पॉसिबल है। अब मैंने बोला नंबर ऑफ रोज मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मना कर दिया, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 24 इंटू शेप 5, या आपने 27 भी पास कर दिया तो भी एरर दे देगा उस केस में। वो मैनुअली हमें कोड से ही करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। अच्छा, अब ना यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसका सम करने जाते हो, नाउ इट्स 2D एरे, तो सम पूरे एरे का मिलेगा। तो पहले भी हमने सम किया था तो यही आया था, बट दिस टाइम वी डोंट वांट द कंप्लीट सम ऑफ द एरे, आइदर वी वांट रो वाइज और वी वांट कॉलम वाइज। तो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत यूजफुल आर्ग्यूमेंट है वो, दैट इज एक्सेस। यू हैव टू मेंशन एक्सेस। एक्सेस या तो 0 होगा या 1 होगा। तो एक्सेस में क्या आ जाता है, बाय डिफॉल्ट नन रहता है, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेस इज नन। तो आपको बताना है कि एक्सेस या तो 0 पास करो या 1 पास करो, तो इट विल टेल यू। तो मैं खुद ही पास करके दिखा देता हूं। तो लेट्स से हमने 0 पास किया, सो you'll गेट 4 वैल्यूज, यानी कि हर एक कॉलम का सम मिल गया आपको। तो 0 बेसिकली किसके लिए है, कॉलम वाइज, और 1 के लिए क्या होगा, रो वाइज। तो आई कैन राइट np डॉट सम ऑफ एक्स, और एक्सेस की वैल्यू कर देते हैं 1, तो ये कॉलम वाइज चल जाएगा, रो वाइज चल जाएगा, हर एक रो का सम आपको दे देगा। ओके, अब सम के जगह पर आप मीन कर सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। हाँ हाँ, एक्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो,
सिर्फ उस कॉलम का सम मुझे मिल जाएगा। तो यू कैन राइट ये कि मुझे सेकंड रो का सम चाहिए, तो आपने लिख दिया कि भाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो सेकंड रो का सम मिल जाएगा आपको स्पेसिफिकली। सेकंड कॉलम का चाहिए तो कॉलन कॉमा 2, सेकंड कॉलम का मिल जाएगा। उसमें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर हमें पास करना है तो सेकंड रो का सम मिल जाएगा, और ये मुझे सम ऑफ सेकंड कॉलम दे देगा। ओके, अब सम की जगह पर जो भी मेथड्स है, मीन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सब कुछ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि इसमें नई रो या न्यू कॉलम ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हो आप। सो लेट्स से दिस वाज द डेटा, ये डेटा है। एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो और अ न्यू कॉलम, तो आप क्या करोगे, एनपी डॉट, बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल तरीका लेते हैं, वी स्टैक। वी स्टैक का मतलब होता है वर्टिकली स्टैक करना है आपको डेटा। तो ऐसे ही एक होगा एच स्टैक, अगर हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है। तो रो वाइज अगर आपको स्टैकिंग करनी है तो यू विल यूज वी स्टैक। तो लेट्स से, बाकी इसमें स्क्रॉल करके एग्जांपल वगैरह सब मिल जाते हैं। तो हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और इसके अंदर हम पास करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, एक दो तीन चार एलिमेंट पास किए ना भाई हमने, इसको ऐसा कर दो, ठीक है। तो वी स्टैक के अंदर हम लोगों ने लास्ट में एक रो इंसर्ट करनी थी, तो दिस इज हाउ वी हैव इंसर्टेड। एंड सपोज इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, तो आप यूज करोगे एच स्टैक, और डेटा पास होगा इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल पास अ पर्टिकुलर न्यू कॉलम। तो वी स्टैक से एक नई रो ऐड हो गई आपकी, और एच स्टैक से एक नया कॉलम ऐड हो गया। एक रो पास करनी थी तो हमने एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन कॉलम के लिए इंडिविजुअल रो में एक एक अलग अलग वैल्यू जाएगी, इसलिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से।
कौन सी वैल्यू है? हाँ हाँ, okay, so this is how we can add a new row and a column. बीच में नहीं हो पाएगा इसमें ना सर। तो हमें np डॉट रेंडेंट के बारे में तो देखो पता ही है। अगर रैंडम डेटा डालना है तो रैंडम डॉट रेंडेंट किया। अब इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपने रेंज पास की, लेट्स से 1 to 10 रेंज है, वो रेंज कुछ भी हो सकती थी। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू पास, 4 एलिमेंट है, लेकिन वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल में जाने वाला है डेटा। डबल स्क्वायर ब्रैकेट है, डायमेंशन क्या हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने इसको बोल देना है कि 1/4 की डायमेंशन में पास होगा डेटा। अब सपोज यहां पर करना है हम लोगों ने रैंडम डेटा इंसर्ट, तो हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, 1 2 3 6 रो 1 कॉलम, तो 6/1 की डायमेंशन में डेटा चला जाएगा। ओके, तो लास्ट में कॉलम आ गया हमारा। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। ओके, सो आगे बढ़े। मतलब -1 से -20 भी पास। कुछ माइनस में हो कुछ प्लस में हो, तो एक रेंज आप ऐसा कर सकते हो ना,
कि आपने बोला -10 से +20 ऐसे आ सकती है। ये तो रेंट इंट है ना, तो ये तो इंटीजर में है, तो रैंडम डॉट रैंडम हमने यूज किया था, तो वो यूज करना पड़ेगा। मतलब आगे कर लेते हैं। मतलब सिर्फ इतना, नहीं नहीं इतना 2 घंटे का अभी कुछ हुआ क्या है, मैं अभी तो अपने मतलब बस बेसिक एरे बनाना वगैरह वगैरह। मतलब जैसे अगर आप कल वाला पार्ट लोगे तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि कल तो बेसिक बहुत जल्दी 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 हो गया, क्योंकि उसमें पहले लूप बताओ, लूप पे सिंपल एग्जांपल कराओ, फिर इफ एल्स कराओ, ऐसे होता है। हमने सीधा एक एग्जांपल लिया, उसी में लूप इफ एल्स सब डाल दिया। जैसे ये वाला पार्ट तो इतना ही टाइम लेता है, 1-2 घंटे में। बेसिक बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मेथड्स हैं, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। इसमें बस प्रैक्टिस करो आप, अगर आपको थोड़ा चाहिए हैंड्स ऑन। पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो। मशीन लर्निंग का तो एक ही लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्किलर्न, साइकिट लर्न। मशीन लर्निंग के लिए बस वही है। और या तो टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च, कोई एक। टेंसरफ्लो गूगल का है, पाइटॉर्च फेसबुक का है, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा में क्या ऐड करना मतलब? इसके बाद देखो, हाँ अभी पेंडा से स्टार्ट करेंगे ना। 1, ये 1 से 20 के बीच में रैंडम नंबर आएंगे, ठीक है। और कितने कितने रैंडम नंबर आएंगे? 6x1 की डायमेंशन में, 6x1 का कैरी आएगा, तो 6 आइटम आएंगे। ये तो ये है लास्ट वाला जो कॉलम है ना, ये आखिरी कॉलम ऐड हुआ है नया। इस कॉलम में 11, 16, 2, 10, 8, 4, 1 से 20 के बीच में आएंगे ना रैंडम नंबर, लेकिन उसमें ये तो शेप है। आप इसको ना एक काम करो, इस चीज को अलग से चला कर देख लो ना। ये वाला देखो, 6x1 का कैरी दे देगा ना ये, ऐसे कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे। पहले के 11 है, 16 है, तो इसको एक्स्ट्रा भी सेल दिखाया है, कुछ भी आ सकता है 1 से 20 में। तो 5 रैंडम नंबर आते हैं। अच्छा, 5 रो, 6 नंबर ऑफ रोज है, एक कॉलम है। अच्छा, 6 नंबर ऑफ रोज है, वो वैल्यू आ सकता है। आपने डाल दिया 16 को, मैं एक तो 16 को रो गई, एक कॉलम में नीचे बैठ के दिख रहा था। ठीक है, ये हुआ कैसे? इवन को टाइम वर्क को टाइम वर्क को 10 को बढ़ाने, 10 20 को बढ़ाने, एक रो आएगी, 4 कॉलम आएंगे, एक रो। ठीक है, तो कंसीडर होना ऐसे है। हां, तुम्हारे भी 1 5 7 हो गए। नंबर से खेत को जो सिली होता है, ठीक है। बच्चे को कुछ दिखा तो बताना है भाई, इस यूजेस इसकी बहुत दूसरी और जगह में डायरेक्ट मशीन लर्निंग को डिपेंड करती है। हां, बहुत जगह है, बहुत जगह। ये बस 3 देखो, मैं 19 20 सब कुछ भी दिख रहा है ना, उस लेके 1 से लेके मिस्टर 90 तक पहुंच गए, देखना है। अब तो रिकॉर्डिंग वगैरह में भी देख सकते हो। अच्छा, कितनी देर तक सेशन चलेगा? अभी पता नहीं क्या टाइमिंग है, मतलब अभी सेशन कंटिन्यू है या ब्रेक है, क्या है? ब्रेक हो गया है? नहीं, मुझे नहीं पता कितने बजे है।
अरे आगे फिर कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो कुछ कुछ इसके बाद और चीजें देखनी है हमें। देखो अभी तीन चीजें होती हैं, एक नंपाई, एक पेंडास, एक मैटप्लॉटलिब। नंपाई हमने देख लिया, एरेज के साथ खेलना में आ गया। अब इसके बाद अगर हम लोगों को प्रॉपर डेटा के साथ खेलना होगा, क्योंकि ये तो रैंडम डेटा है, नंबर्स है, सो वी नीड पेंडास। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पेंडास, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी ऑफ पाइथन टू प्ले विद द डेटा दैट इज इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन। वो 3D 4D पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें या तो वन डायमेंशनल डेटा होता है, उसको सीरीज बोलते हैं, टू डायमेंशनल डेटा को डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो अगर वन डायमेंशनल डेटा होगा तो इट इज अ सीरीज, और 2D हुआ तो इट इज अ डेटा फ्रेम। अब एक्चुअली ये आगे भी काम कर रहा है 3D 4D के लिए, तो उसके लिए अभी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है इसका, कुछ अभी बिल्ड हुआ नहीं है, स्टेबल आया नहीं कोई वर्षन। तो पेंडास को डिफाइन कैसे कर सकते हैं वन वर्ड में? आप कह सकते हो पेंडास इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस। ओके, तो इसके बाद थोड़ा पेंडास का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेना आप लोग। तो पेंडास के लिए हम लोगों को डेटा चाहिए होगा, तो हम अभी डेटा पहले खुद से भी बना सकते थे, बट दिस टाइम इफ यू वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल फाइल, सीएसवी कहीं से भी लेके आना, वो भी कर सकते हैं। तो पहली चीज इसमें क्या बनाते हैं? सीरीज, जो कि वन डायमेंशनल डेटा यूज कर सकती है बस। तो सपोज आई हैव एज, मेरे पास कुछ लोगों की एज है और कुछ लोगों के नाम है, तो नेम्स का एक एरे जनरेट किया, लिस्ट बना दी। ओके, और अब हम एक सीरीज बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एक ही आर्ग्यूमेंट पास करूंगा मैं, लेट्स से आई हैव पास्ड एज, तो एक सीरीज यानी कि एक वन डायमेंशनल डेटा बन जाता है। ओके, दिस इज हाउ अ सीरीज लुक लाइक। अब आप चाहे तो ऐसा कर सकते थे कि कॉमा करके एक आर्ग्यूमेंट है इसके पास जिसका नाम है इंडेक्स, और इंडेक्स में क्या पास करके आ गए? नेम्स। ये आप कर सकते हैं। तो अब अगर आप सीरीज देखने जाओगे तो दिस इज हाउ योर सीरीज विल लुक लाइक। लेकिन अब और कुछ पास नहीं हो सकता। लेट्स से मेरे पास इनका सैलरी, मेरे पास डिपार्टमेंट, कुछ भी है, आई कैन नॉट पास एनीथिंग एल्स। इंडेक्स हो गया और नेम हो गया, बस एज हो गई। ओके, अब इसमें से डेटा निकालना है, वो हमें आता है, हमने अभी अभी नंपाई में सीखा, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां से भी डेटा निकाल सकते हो आप। आपने 0 लिखा, 34 आ गया। आपने लिखा सीरीज स्क्वायर ब्रैकेट, और इस बार आप लिखकर आते हो जॉन। तो कोशिश करते हैं कि क्या जॉन लिख के भी डेटा मिलता है? देखो, इससे ऊपर हमने पैराग्राफ को इंपोर्ट किया, सबसे ऊपर किया हुआ है मैंने पहले भी। हाँ जी मैम, क्या? सब सब। तो पहले पेंडास इंपोर्ट करना है, फिर हमने दो वेरिएबल बनाए, नेम एंड एज के नाम से। फिर सीरीज में अगर खाली एज पास करते हैं तो एज चला जाता है। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि अब हमें एक प्रॉपर डेटा अगर बिल्ड करना है, उसमें नेम्स नाम का एक कॉलम होना चाहिए, एज नाम से कॉलम होना चाहिए, सपोज सैलरी नाम से भी कोई कॉलम होना चाहिए, ऐसे करके देयर कुड बी एन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो डेटा फ्रेम लिखते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर आप पास करोगे। तो एक्चुअली यहाँ पर अलग अलग तरीके से पास कर सकते हैं, करली ब्रैकेट्स में डिक्शनरी बनाकर।
तो हम एक काम करते हैं, डेटा वेरिएबल लेते हैं, उसमें एक डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी में की है नेम्स, उसमें नेम्स वेरिएबल डाल दिया आपने, और एक है हमारे पास एज, उसमें एज डाल दिया, और यहां पास कर देते हैं डेटा, इट बिकम्स अ डेटा फ्रेम. So this is how data frame will look like. वो automatically indexing करके आ गया 0 1 2 3 4 5, and we can have any number of columns. Okay, I hope it's clear till here कि डेटा फ्रेम कैसे बनाना है, सीरीज कैसे बनाना है. Sir, अगर इसके बाद कॉमा लगाया है, ये शो करा ना कि इसके बाद एक और कॉलम ऐड होगा, थर्ड होगा तो फिर एज के यहाँ पे कॉलम लग जाएगा. सीरीज का कैपिटल होगा, pd डॉट सीरीज, पहला इस कैपिटल दोनों में पहले सीरीज में वेरिएबल तो नहीं ना. देखो ना. अभी ठीक है, आगे बढ़े. इसके बाद अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं. सर एक और डेटा बाकी अगर आप कोलैब यूज करते हो तो यहाँ पे कुछ और फीचर मिल जाते हैं. कन्वर्ट दिस डेटा फ्रेम इनटू इंटरेक्टिव टेबल. ठीक है, तो ऐसे करके कन्वर्जन्स हो जाते हैं. मतलब कुछ जरूरत तो इनकी है नहीं. मैंने डाल दिया था सर को, लिंक भी शेयर कर दिया मैंने. ओके. सर एक और क्वेश्चन है, एक सेकंड. सर अगर ब्लैंक एक ऐड करनी है, मैंने एड्रेस डाला है, ईमेल आईडी, इसका कुछ नाम नहीं कुछ डाला है. नहीं, उसमें वैल्यू तो कुछ डालनी पड़ेगी. लेट्स से अब आपको एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं. इसमें सिटी नाम से हमने कोई कॉलम डाल दिया है, तो मेक श्योर कि आप 6 ही डालोगे, 5 भी नहीं डाल सकते. अगर किसी नहीं डालना तो नल डाल के आप छोड़ोगे, नैन करके उसको छोड़ना पड़ेगा अगर किसी का नहीं पता. आर्गुमेंट 6 ही जाएंगे. तो लेट्स से हमने सिटी नाम से एक नया कॉलम बनाना है, तो हम ऐसा लिख कर आ सकते हैं df city is equals to, और अब उसमें सिटी के नेम्स हमने लिखने शुरू कर दिए.
इसमें हम लिखकर आ जाते हैं, सिटी की जगह लिख दिया आपने कंट्री। ठीक है जी, कंट्री हम डालकर आ गए, यूएसए, इंडिया से। तो अब डेटा फ्रेम में हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा जाकर। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नेम क्या रखना है, और इक्वल्स टू में एक लिस्ट या कुछ भी पास करके सिंगल। अब ऐसे ही अगर फेच करना है किसी एक कॉलम का डेटा तो लिख कर आ सकते हैं डीएफ। लेट्स से आपने लिख दिया नेम्स, तो खाली नेम्स का सीरीज आ जाएगा। ओके, आपने दो चीजें चाहिए, आपको चाहिए नेम्स भी चाहिए और एज भी चाहिए, तो लगाओ डबल स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर सिंगल इंडिविजुअल चाहिए तो बस एक लिख दिया, मल्टीपल चाहिए तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, और डबल के अंदर तीन चार कितने भी लिख सकते हैं। फिर हम कोई भी कॉलम चाहिए उसका नाम लिख सकते हैं। अब इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के लिए कुछ चीजें हैं, वो होंगी वैसे ही जैसे हमें पता है, बट क्या होगा, लेट्स से आपने बोला डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट 0 हमें चाहिए अब। ठीक है, तो क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी में, तो डायरेक्टली काम नहीं करता। तो इसमें छोटा सा काम इतना करना है, आपने आई लॉक लिख देना है बस। इंडेक्स लोकेशन बोलते हैं इसे। तो आई लॉक 0 आपको 0th रो दे देगा। ओके, आई लॉक विल गिव यू 0th रो। आप लिखो df डॉट आई लॉक 1, तो फर्स्ट रो मिल जाएगी आपको। अब अगर आपको कॉलम चाहिए तो क्या लिखोगे आप, 0, यहां पर पहला आर्ग्यूमेंट कॉलन फिर 0, तो आपको 0th कॉलम मिल जाएगा। तो डायरेक्टली डेटा नहीं निकलकर बस डॉट आई लॉक लगाना है हमने, जब भी हमें डेटा फ्रेम पर इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्स लोकेशन, एक लॉक होता है एक आई लॉक होता है, तो हम लॉक यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें चीजें अलग तरीके से काम करती हैं। उसमें इंडेक्स ये वाली पास की जाती है ये। अगर ये 0 1 2 3 4 5 6 कुछ और है तो वो लिखना पड़ेगा। आई लॉक में हमेशा इंडेक्स पास कर सकते हो आप। आई होप क्लियर है। ओके, फिर कुछ बेसिक मेथड्स और भी हैं। जैसे एक मेथड मिल जाएगा जिसका नाम है हेड। हेड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन दे देगा। तो आप पास कर दो कि मेरे को फर्स्ट 5 नहीं चाहिए, फर्स्ट 3 चाहिए बस। अब स्टैंडर्ड क्या सब लोग सेम यूज करते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बाकी प्रॉब्लम ये होगी कि कहीं और कोड देखूंगा उसने पीडी लिख रखा होगा, तो मैच कराना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बना दिया अब तो लोगों ने, लिख कुछ भी सकते हो आप। तो डेटा फ्रेम बना हमारे पास, उसमें हेड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 रोज रिटर्न करता है। रिटर्न फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। ऐसे ही टेल मिल जाएगा, टेल लास्ट 5 ऑब्जर्वेशंस दे देता है। क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी मेथड है हमारे लिए। कल को आपके डेटा में 6 एंट्री थोड़ी ना होंगी, 600 होंगी, 6000 होंगी, 6 लाख होंगी। तो सारा डेटा कैसे प्रिंट करोगे आप, सारा डेटा नहीं देखना, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन देखनी है बस। उसी से आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या कॉलम्स अवेलेबल है और क्या क्या रोज में दिया हुआ है। तो इसलिए डीएफ डॉट हेड या टेल हम यूज कर लेते हैं उन केसेस में। पहली लाइन में जैसा हमने लिखा, ऊपर टाइटल लिखते हैं ना, नेम, एज, वो भी फर्स्ट लाइन में
लोग डालना है। तो अगर क्या ऐसा प्रोविजन होता है कि जिसमें मैं ये चाहूँ कि मेरे हर पेज में नेम पेज एड्रेस लिखना हो। हाँ तो वो तो बाय डिफॉल्ट देखो हमेशा कॉलम्स आपको मिलेंगे नेम एज। अगर ये डेटा में गिवन नहीं है तभी तो नहीं आएगा, अगर ये है तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, हमेशा हमेशा आएगा। जब भी आप डेटा फ्रेम से डेटा निकालोगे ये बाय डिफॉल्ट आपको देगा ही देगा हेड, इसका जो हेडर है। हेडर तो है, फुटर हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई सब लोगों को। तो अभी हमारे पास हेड और टेल मेथड्स है जिसके थ्रू आप फर्स्ट 5 या लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सपोज इस बार हम लोग क्या करते हैं, ये हमने बेसिक बेसिक देख लिया है, अब इसके बाद ना प्रॉपर किसी डेटा को इंपोर्ट करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को मैं सेव करके छोड़ देता हूं, यहाँ पर एक न्यू नोटबुक बनाते हैं अब। और इसके अंदर क्या करेंगे, कोई प्रॉपर एक्सेल सीएसवी कुछ रीड करने का एग्जांपल एक ले लेते हैं, उसी पर काम करेंगे फिर आगे। तो देखो सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट करना होता है, राइट साइड में कनेक्टिंग आ रहा है मेरे में लिखा हुआ, आपके में कनेक्ट आएगा तो पहले कनेक्ट पे क्लिक करोगे, फिर ये कनेक्ट होगा, उसके बाद ही कोड करना शुरू होता है। अब यहाँ ना लेफ्ट साइड पर आपको नजर आएगा कि बाय डिफॉल्ट की कोई सैंपल डेटा प्रोवाइड करता है खुद से, जिसको आप रीड कर सकते हो। लेकिन अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, मैं इसको ड्राइव से कनेक्ट कर सकता हूँ, अपने गूगल ड्राइव से, वहां पे कोई डेटा है तो डायरेक्टली वहां से आ जाएगा। गिट से कनेक्ट कर सकते हो, kaggle.com से कनेक्ट कर सकते हो, लोकल मशीन से कनेक्ट कर सकते हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ड्राइव से तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगर गूगल ड्राइव से करना है तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, यहाँ पे माउंट ड्राइव नाम से ऑप्शन आता है, ये तो आपकी गूगल ड्राइव डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, जो भी ड्राइव पे पड़ा है सब यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कि नहीं मेरे को सिस्टम से अपलोड करना है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो मैं कोई डेटा अपलोड कर देता हूं यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, तो मैं एक सेल्स का डेटा यूज करता हूँ इनिशियली। आप किसी भी चीज का जो भी आप जिस भी डेटा के साथ कंफर्टेबल हो, कोई भी डेटा ट्राई करो आप, तो आपने कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्टली। बाकी कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, 3-4 लाइन का कोड लिखना होता है, फाइल नाम का पैकेज होता है, उसके थ्रू भी इंपोर्ट हो जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी चल जाएगा। बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि अब जैसे ये डेटा अपलोड हो गया आपका, यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्रेस आती रहती है। मिनिमाइज करके विंडो और जहाँ डाटा उसे ड्रैग कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा सेट सेल्स आ गया। सो दिस इज अ एक्सेल फाइल नॉट सीएसवी, तो इसलिए रीड एक्सेल। आपने बस यहाँ जाना है, अपने पास कोई भी फाइल है, लेट्स से मेरे पास पेट्रोल का डेटा पड़ा हुआ है, इसको ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया यहाँ। ठीक है, इसकी प्रोग्रेस नीचे नजर आ जाएगी, कितना अपलोड हो गया है, अपलोड हो गया ऊपर दिख जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी डेटा अपलोड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक ये है, एक बार ये बंद हो गया, रीस्टार्ट हो गया, तो डेटा चला जाएगा, दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। वो हमेशा ही होगा, वो तो चाहे किसी भी तरीके से करो आप। तो अब आ जाते हैं हम पेंडास पर। देखो जी, तो पीडी के पास एक मेथड है रीड। अब रीड में कितने सारे ऑप्शंस है ना, ये देखने हैं हमें। अगर हिंट नहीं आता है तो कंट्रोल स्पेस दबाकर हिंट आ जाता है। क्लिपबोर्ड यानी कि कुछ कॉपी पेस्ट किया है, सीएसवी, एक्सेल, फेदर, एचटीएमएल, जेसन, तो ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखो, तो कहीं से भी डेटा रीड कर सकते हो आप। इनिशियली अभी हमारी रिक्वायरमेंट है एक्सेल से डेटा रीड करने की, तो रीड एक्सेल यूज करना है। फाइल का नाम क्या है हमारा, फाइल का नाम है डेटासेट अंडरस्कोर सेल्स। कंट्रोल स्पेस करो, पूरा आ जाएगा, पूरा लिखने की कभी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी चक्कर में स्पेलिंग गलत कर देते हैं और केस सेंसिटिव गलत कर देते हैं। मैं कभी पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लिखो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, हिंट आ जाएगा अपने आप। ठीक है,
जुपिटर नोटबुक है तो टैब दबा दो, कोई भी टूल है टैब तो यूनिवर्सल है, बट गूगल कोलैब में टैब की जगह कंट्रोल स्पेस चलता है। ठीक है, डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास। शिफ्ट एंटर शॉर्टकट है जब भी एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले ना हमेशा शेप चेक करो कि डेटा की शेप क्या है। शेप मुझे क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। तो 15,000 रोज हैं और 17 कॉलम है मेरे पास इस डेटा के अंदर। अब देखो 15,000 रो, अगर आपने डीएफ को प्रिंट मार दिया तो 15,000 रो छाप देगा ये, तो इसीलिए क्या प्रिंट करेंगे, हेड। तो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता करते हैं डेटा में क्या क्या है। देखो, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, यूनिट कॉस्ट, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स का कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, चैनल, प्रमोशन, प्रोडक्ट नेम, ऐसे करके बहुत सारा डेटा गिवन है सेल्स का हमें। ऑलराइट, ऐसे ही डीएफ डॉट टेल कर सकते थे लास्ट 5 ऑब्जर्वेशंस को प्रिंट करने के लिए। इसके बाद एक छोटा सा काम करना होता है, इनिशियल स्टेजेस है ये सब, डेटा फ्रेम को जाकर डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्राइब आपको बताएगा आपके इंटीजर कॉलम्स के बारे में। ये सिर्फ उन कॉलम्स का स्टैटिस्टिक्स देगा जो इंटीजर कॉलम्स हैं जिनके अंदर न्यूमेरिक डेटा है। तो क्या क्या देगा, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्सिमम। पूरा स्टैटिस्टिक्स दे दिया आपने इसने आपको कुछ कुछ कॉलम्स का, जो इंटीजर कॉलम है उन सबका। ठीक है जी, तो एक ही बार में इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। पूरे डेटा का 15,000 एलिमेंट्स का। तो पहले एक्सेल रीड हो गई यहां पर हमारी, शेप चेक किया हमने, हेड चेक किया, डिस्क्राइब किया, तो ये डेटा मिलता है। अब सपोज इसमें एक सिंपल, ये कुछ इनिशियल फेजेस में ही पार्ट है कि यू हैव टू चेक हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर। आपको चेक करना है आपके डेटा में नल वैल्यूज कितनी है। बहुत सिंपल है, डीएफ डॉट इज एन करना है और उसका सम कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में चेक कर रहे हैं कि कितनी नल, एन ए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, एन ए एन लिखा है तो नॉट अ नंबर। तो हम हर एक कॉलम में नल वैल्यूज निकाल के उसका सम कर रहे हैं। तो किसी भी कॉलम में कोई नल वैल्यू नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि मेरे डेटा में कितनी नल वैल्यूज अवेलेबल है, किस कॉलम में कितनी है, हर कॉलम का पता चल जाता है। नहीं, नल एक स्पेसिफिक है, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। नल एक स्पेसिफिक है। नल का मतलब क्या है कि डेटा गिवन नहीं है ना। अब डेटा है ही नहीं तो चेक करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे डेटा नहीं है तो। हाँ सर, बस एक मिनट, ठीक है। हाँ तो बता तो रहा है, मतलब क्या देखना है। हाँ तो अगर जैसे मान लो किसी भी कॉलम में नल वैल्यू है तो हम एक फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, हम ऐसा लिख कर आएंगे, अभी फिल्टर्स के बारे में पढ़ना है हमने, कि अगर कहीं पर नल वैल्यू है तो हम ऐसा लिख कर आ जाएंगे कि मुझे पता चला कि सिटी में नल वैल्यू है, तो मैं लिख कर आया सिटी डबल इक्वल्स टू, और अब जैसे नल है या नैन है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एनपी डॉट नैन, तो मुझे सिर्फ वो वाला डेटा दे देगा जहां नल वैल्यू है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे ये, इसको अभी आप लोग चाहे तो छोड़ सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेंडास कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में जाना है, और फिर उसके साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे, यानी कि डेटा को प्लॉट करके देखना शुरू करेंगे। ठीक है।